Okay, now the next curve is BH curve or magnetization curve. So now we will draw the magnetization curve or BH curve. तो ये भी कर्व आई होप के सिंपल होगी, इसको भी हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करेंगे ये. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कर्व ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड द फ्लक्स. तो ये कर्व हम ड्रॉ कर चुके हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स की कर्व क्या होती है, ये इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसके रीजन कौन कौन से होते हैं, ये इसको अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं. नाउ आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज द कर्व. नाउ वी विल ड्रॉ द BH कर्व और मैग्नेटाइजेशन कर्व. तो अब हमने B और H के दरमियान क्या करना है, कर्व ड्रॉ करनी और उसी कर्व को क्या नाम दे रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व. So now our objective is to draw the curve between B and H. B means magnetic flux density. H means magnetic field intensity. So let's suppose these are the axes. Let's suppose this is the x-axis and this is the y-axis. तो जो पहले हमने कर्व ड्रॉ की बेसिकली वो क्या थी हमारे पास, x-axis में हमने किसको शो किया था, मैग्नेटोमोटिव फोर्स को, और y-axis में हमने किसको शो किया था, ये फ्लक्स को. ये so now we want to draw the curve, the magnetization curve or BH curve. So as we know, magnetomotive force is basically equal to, please have my mic off. As we know, magnetomotive force is basically equal to N into I. तो अगर हम देखें तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का करंट के साथ जो रिलेशन है बेसिकली वो क्या है, इसमें डायरेक्ट है. मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. So as we have already discussed, what is the relationship between magnetomotive force and current? When the value of the current will increase, then the value of the magnetomotive force will increase, because the relationship between magnetomotive force and the current is directly proportional. So now according to Ampere law, magnetic field intensity times length is basically equal to N into I. Now as you can see in this equation, the relationship between the current and magnetic field intensity is directly proportional as well. So according to Ampere law, from this equation, the relationship between the current and the magnetic field intensity is directly proportional. That is, when the value of the current will increase, then the value of the magnetic field intensity will increase as well, because the relationship between the current and the magnetic field intensity is directly proportional. I hope कि ये पॉइंट भी सब स्टूडेंट को क्लियर होगा यहाँ पे कि करंट की इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है फ्रॉम दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ. तो इट मींस कि इनका रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा. तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का रिलेशन डायरेक्ट करंट के साथ है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन भी किसके साथ है, ये करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन. सो इट मींस वी कैन राइट डाउन, अगर हम सिंपल इक्वेशन में डिफाइन करें, so we can write down magnetomotive force directly proportional to current, and current is directly proportional to magnetic field intensity. क्या हम इस रिलेशन को आप राइट डाउन कर सकते हैं, ये क्योंकि मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के. करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. सो दिस विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, magnetomotive force and magnetic field intensity. Or in simple word, we can say that magnetomotive force is basically directly proportional to magnetic field intensity or magnetic flux intensity. So this is very important relation. The relationship between magnetomotive force and the magnetic field intensity. The relationship between the magnetomotive force and magnetic field intensity is directly proportional. तो आई होप कि ये पॉइंट सब स्टूडेंट को क्लियर होगा. ये तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स और इंटेंसिटी का आपस में रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है. तो किसी भी चीज का जब रिलेशन डायरेक्ट होता है, इट मींस कि जब एक पैरामीटर में चेंज होगा तो दूसरे के अंदर भी चेंज क्या होगा, सेम एग्जिस्ट करेगा. ये तो डायरेक्ट का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स 10% इंक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, 10% इंक्रीज होगी. इट मींस कि दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा. ये आई होप कि ये पॉइंट सब स्टूडेंट क्लियर होगा कि हमारे पास जो बिहेवियर मैग्नेटोमोटिव फोर्स का होगा, सेम बिहेवियर किसका होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा. ठीक है. सो इट मींस वी कैन रिप्लेस, तो अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो हम इस डायग्राम के अंदर इसको रिप्लेस कर सकते हैं. ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. इन दोनों का रिलेशन भी क्या होगा, सेम होगा. ये ठीक है. तो आई होप कि ये पॉइंट सब स्टूडेंट को यहाँ पे क्लियर होगा. So now the question is, because we want to draw the BH curve,
सो आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ द BH कर्व। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होगा कि हमारे पास जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स तक की कर्व होगा, बेसिकली जो उसका ग्राफ होगा, सेम ग्राफ किसका होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन magnetic force and magnetic field intensity is directly proportional. So I hope this point will clear all of the students. Now the next point is flux. So as we know, flux is basically equal to magnetic flux density time area. So B means magnetic flux density, because we want to draw the BH curve. So it means we can draw the BH curve by replacing the flux into magnetic flux density. So now as you can see in this equation, the relationship between flux and magnetic flux density is directly proportional. So we can write down flux is directly proportional to magnetic flux density. तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि हमारे पास इनका आपस में रिलेशन क्या है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जस्ट 1 मिनट। तो आई होप कि इस पॉइंट को यहाँ तक सब स्टूडेंट को ये क्लियर होगा। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ पे ये पॉइंट आपको so it means flux is basically equal to B into A. Flux is from this equation flux is directly proportional to B. जो हमारे पास रिलेशन फ्लक्स का होगा, सेम रिलेशन किसका होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होगा। So this equation is also very important for BH curve. So it means flux is basically directly proportional to magnetic flux density. So I hope this point will also be clear all of the student कि हमारे पास फ्लक्स और B का रिलेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा। दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। ये जब फ्लक्स का जो बिहेवियर होगा, सेम बिहेवियर किसका होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो इट मींस कि हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मींस कि जो हमारे पास बिहेवियर मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स का आ रहा है, ये तो सेम बिहेवियर किसका होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और बी का रिलेशन भी क्या होगा, सेम वही रिलेशन होगा जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स का रिलेशन होगा। ये इससे हम यही कंक्लूड करेंगे बेसिकली ये, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इट मींस तो ग्राफ जो कर्व होगी बेसिकली क्या होगी, वो सेम वही होगी जो हमारे पास MMF और फ्लक्स के दरमियान कर्व होगी। सो द BH कर्व विल बी सेम एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड फ्लक्स कर्व। ये कर्व क्या होगी, दोनों केसेस में सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्लेस करेंगे और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, फ्लक्स को हम B से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि फ्लक्स और B का रिलेशन क्या है, सेम है, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। The relationship between magnetomotive force and magnetic field intensity is directly proportional as well. So it means this will be the relationship between B and F. तो ये हम इसको रिमूव करें तो ये हम टर्म यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, फ्लक्स, क्योंकि दोनों का बिहेवियर सेम है। सो दिस विल बी ओके। जस्ट वन, आई होप कि ये BH कर्व का आपको बिहेवियर क्लियर होगा सबको। ये तो अगर इसके अंदर BH कर्व के अंदर कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो आप डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। क्या ये BH कर्व सब स्टूडेंट को क्लियर है कि आप कैसे हमने ड्रॉ की और इसका बिहेवियर क्या होगा ये? तो अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं अगर ये पॉइंट आपको। सो दिस कर्व इज कॉल्ड BH कर्व। जस्ट वन, तो BH कर्व भी क्या होगी, सेम वही कर्व होगी जो हमारे पास मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स के दरमियान कर्व होगी, बिकॉज मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो क्या है, किसी स्टूडेंट को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं कि BH कर्व हम ड्रॉ कैसे किए हैं? इसी कर्व को हम नाम देते हैं, ओके ओके थैंक यू, इसी कर्व को हम नाम देते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व। सो दिस कर्व इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन कर्व और BH कर्व। तो जब यहाँ हम BH कर्व की बात करें तो मैग्नेटाइजेशन कर्व भी उसी को हम नाम दे रहे हैं। इसलिए मैग्नेटाइजेशन कर्व की बात करें या BH, दोनों का नेम सेम है, बिहेवियर क्या है दोनों का सेम है बेसिकली। ठीक है, सो नाउ द जी जी सर, हम वैसे इसे मैग्नेटाइजेशन कर्व कह सकते हैं ना सर, पहले जो हमने फ्लक्स और उसके दरमियान बनाई थी सर, MMF के दरमियान। जी जी उसको कह सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर दोनों का सेम है। इशू ये कि जो हमारे पास BH कर्व होती है उसको हम नाम देते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व। जो हमारे पास BH कर्व है उसको हम बेसिकली नाम देते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है,
क्योंकि कर्व हमारे पास सेम है दोनों के, जो फ्लक्स और मैग्नेटोमोटिव फोर्स है ये हमने अपने रेफरेंस के लिए ड्रॉ की। ये कर्व हमने क्या किया बेसिकली अपने रेफरेंस के लिए ड्रॉ की, इसको ड्रॉ करना आसान है एज कम्पेयर टू बी एंड एच। इसलिए पहले हमने ये ड्रॉ की ताकि बी एच का हमें कर्व ड्रॉ करना ज्यादा हमारे लिए मुश्किल ना हो जाए, ठीक है। अदरवाइज हम जो बी एच कर्व होती है, कर्व दोनों की सेम है। आप इसको भी नाम दे सकते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व, बिकॉज द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड फ्लक्स एंड बी एंड एच आर सेम। तो आप किसी को नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये कर्व हमने क्यों ड्रॉ किया, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली इस क्लास का, ये हमने मैग्नेटिक परमेबिलिटी का बिहेवियर चेक करना है, क्या वो सेम होती है या उसके अंदर कुछ चेंज आता है। उसके लिए हमारे पास ये कर्व ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कर्व आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास बी और एच का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। सो नाउ दिस वैल्यू इज कॉल्ड, so as we know b is basically equal to mu into h, so mu will be equal to b over h. So it means now as you can see in this graph the the value of the, this is the value of the magnetic permeability. ये क्योंकि b और h के दरमियान जो हमारे पास कांस्टेंट वो क्या है बेसिकली मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे हम H की वैल्यू चेंज हो रही है तो B की वैल्यू स्टार्ट में क्या हो रही है हमारे पास सेम चेंज हो रही है, उसके बाद B के अंदर जो चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है। आफ्टर दिस द वैल्यू ऑफ B, जी सो दिस वैल्यू इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये जो बिहेवियर ये किसका आ जाएगा हमारे पास, द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, बिकॉज म्यू इज बेसिकली इक्वल टू B over H। तो B और H के दरमियान जो चीज आ रही है वो क्या है हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो आई होप कि ये म्यू का रिलेशन आपको क्लियर होगा क्योंकि इसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे जाके कांस्टेंट नहीं है। तो देखिए हर पॉइंट के अंदर जैसे एच चेंज कर रहे हैं बी चेंज होगा ये, तो बी और एच अगर सेम चेंज हो रहे हैं तब वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी। अगर हम एच को इंक्रीज करते जा रहे हैं, एच को हमने 10 किया, बी की वैल्यू भी 10 है, इट मींस कि चेंज सेम आ रहा है, उस केस में वैल्यू क्या होगी इसकी सेम होगी। अगर हम एच की वैल्यू 20 करते हैं तो बी को 20 होना चाहिए, अगर बी 20 नहीं होता इट मींस कि अगर बी की वैल्यू कम हो रही है उस केस में हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। इसी पॉइंट को आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास बिहेवियर आता है ये कांस्टेंट क्यों नहीं होता है। एक इसकी रीजन आई होप इस कर्व से आपको क्लियर होगी ये कि जब फोर्स सैचुरेशन रीजन में होती है तो उस केस में क्या होता है हमारे पास जैसे जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे डेंसिटी के अंदर कोई चेंज एग्जिस्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। एक ये पॉइंट सब स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि ये रिलेशन क्या है, ये शो क्या कर रहा है इसके अंदर।